Hey everyone, I'm Lakshmi Sao and I welcome you all to my YouTube channel. So, how are you all doing, guys? I hope you all are doing well. And today in this video, I'm going to give some tips that how to calculate the electronic configuration, how to calculate the group, periods and blocks. So, let's get started in this video. So, let's get start our topic today. So before going to start the electronic configuration, you should know about the quantum numbers, right? And which is given in your chapter 2, that is a structure of atom. Okay, so it is the electronic configuration. How do we actually calculate the electronic configuration of any element of hydrogen, helium, lithium, uranium, and etc. Any of the element you can calculate the electronic configuration very easy. Okay, so this is the formula, or you can say how we calculate, basically how we calculate the electronic configuration. So this is the very important for you. This will be learned when you calculate and when you practice more and more electronic configuration. So you should learn this. This is very important. Okay, so 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6x, and many of them, right? Okay, so before going to start, I will be told you that what is quantum number, right? So quantum numbers are there are four quantum numbers. Basically there are four quantum numbers, which are first one is principal quantum number, right, which is denoted by letter n. Okay, then हमारा है second one is azimuthal quantum number. This is called as azimuthal quantum number and it is represented by L. Then third one is our magnetic quantum number. This is represented by small letter m. And fourth one is spin quantum number, right? It is represented by S. So there are the formulas which you have to learn and it is very easy. So azimuthal quantum number के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमारा होता है जो भी n की वैल्यू दिया है ना, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, n-1 कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1, जो भी हमारे n की वैल्यू दी रही होगी उसमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर, राइट? फॉर एग्जांपल लेट्स से n की वैल्यू हमारी कितनी है, 5, राइट? n की वैल्यू हमारी 5 दी है. याद रखिए अभी हम लोग के पास कोई भी मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी ये हमारे SPDF, you are in class 11th and I hope that you all are known about this SPDF and KLM and right. So basically हमारा जो SPDF होता है वो क्या होता है, SPDF is our orbitals, right? SPDF is our orbitals or it is also known as subcells, right? Then what is cells? So cells is our K, L, M and N, right? You are aware of this from class 9, right? Okay, so this is your K, L, M and N. This is our subcells, right? Okay, so then what you have to do is we know that S, right? K, L, M and N. As I have told you, these are what? These are cells, right? And इसका जो K जो है वो किस किस ऑर्बिटल से बना हुआ है, या फिर K जो है किस किस सबसेल से बना हुआ है, तो K जो है बेसिकली S सबसेल से बना हुआ है, L जो हमारा वो किस से बना है, S और P से, M जो है हमारा S, P and D से, एंड N हमारा किससे बना है, S, P, D and F, राइट? और हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा S ऑर्बिटल है ना, S में जो हमारे पहले इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, राइट? S में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2. ओके, P में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6. D में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 एंड F1 इज 14, राइट? तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इसमें अब जब ये SPDF हो गया, इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं तो इसके ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, राइट। तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का सीधा क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके सीधे हाफ हो जाएगा। तो इसमें S ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 1, 2 है तो उसका 1 हो जाएगा, राइट। और ऑर्बिटल्स को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि एंटी क्लॉकवाइज होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्लॉकवाइज होंगे, कितने होंगे, कैसे होंगे, सब पता चलेगा। हमारा P जो है वो 6 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 3, राइट। तो इसमें हमारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे, P ब्लॉक में हमारे ऑर्बिटल्स 3 होंगे। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, D में हमारे कितने होंगे, 5, क्योंकि 10 है तो 1 2 3 4 एंड 5। और इसमें कितने होंगे, 7, 1 2 3 4। तो एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको SPDF बता दिया, कि एलिमेंट सेल्स बता दिए, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो उसका जो हाफ होता है वो क्या होता है हमारा, उसमें हमारे उतने ऑर्बिटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा S, राइट, S में हमारे सब शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे 2 होते हैं, राइट। और P में हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। D में हमारे कितने होते हैं, 10। एंड F में हमारे कितने होते हैं, 14, राइट। तो उसके ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 1 3 5 एंड 7, राइट। ये हो गया। अब मैंने आप लोग को बताया था ये जो हमारा K L M एंड N है, ठीक है, ये हमारा क्या है, शेल्स है, राइट। और ये किससे बना है, सब सेल से। S से बना है, ये किससे बना है, S और P से बना है। ये किससे बना है, S P एंड D से। और जो हमारा N सब सेल्स है वो किससे बना है, S P D एंड F से। अब S में कितने होते हैं, 2, राइट। S P 2 + 6, इसमें क्या होगा, 2 + 6 + 10, राइट। 2 + 6 + 10 + 14। तो वही ना आप लोग देखते हैं जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फील कर रहे थे, राइट। ऐसे हम लोग फील करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, K शेल है, L सेल है, ये हमारा M सेल है एंड हमारा क्या है, N सेल है, ठीक है। तो हमारा K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। L सेल में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 + 6 8। M सेल में कितने होते हैं, 2 + 6 + 10 यानी कि 18। और इसमें क्या होता है, 32, ठीक है। ये हम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ चुका है, ओके। देन अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि जो हमारा एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, राइट। फॉर एग्जांपल हम लोग N की वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हम लोग वैल्यू ले लेते हैं क्या, 3, ठीक है। तो हमारा एज़ोमिथल क्वांटम नंबर जिसको L से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वो क्या हो जाएगा, N-1, दैट इज 3 - 1 = 2, ओके। सो अब हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका क्या था, +L2 - L, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा 2 था ना, हमारा क्या, L की वैल्यू हमारा 2 था, तो इसको कैसे हम लोग राइट करेंगे, +2 + 1 0 -1 -2, ठीक है। हम लोग ऐसे राइट करते हैं, ओके। देन अब हम लोग देखते हैं कि इसके आगे हम लोग को अब कैसे करना है, ठीक है। +2 + 1 0 -1 एंड -2, ये आप लोग को अच्छे से याद रखना। अगर आप लोगों ने ऐसे राइट किया +1 +2 -2 -1 तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमेशा जो भी हमारा नंबर दे रहा था उससे स्टार्ट किया जाता है, राइट। 4 यहाँ पर रहता है तो +4 देन +3 देन +2 देन +1 0 देन -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये हमारा गया स्पिन काउंटर नंबर जिसको S से रिप्रेजेंट करता है, वो क्या था, +-1/2। अब +-1/2 क्या है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो उसको उससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको +12 से। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो वो क्या होगा, -12, राइट। अब हम लोग देखते हैं कैसे पता चलेगा वो इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ठीक है। तो अभी तुम लोगों ने N की वैल्यू ली थी, उसमें S P D F यानी कि कोई भी सब सेल नहीं जुड़ा हुआ था, राइट। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, 4P, राइट, 4P5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 4P5 हमारा दे चुका है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये किसी एलिमेंट का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि 5th इलेक्ट्रॉन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, उसके चारों क्वांटम नंबर को निकालना है, ठीक है। तो इसमें N की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारे आगे दी रहती है 4, ठीक है।
एल की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप लोग को ये यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो भी एन की वैल्यू है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा एल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हमारी एस पी डी एफ दे दी रहेगी तो हमने आपको बताया था कि एस में एस की वैल्यू क्या होती है क्वांटम नंबर के लिए 0, पी की वैल्यू होती है क्वांटम नंबर के लिए 1, डी की वैल्यू होती है 2 एंड एफ की वैल्यू होती है क्या 3। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्वांटम नंबर एस के लिए कितना होता है, पी के लिए कितना होता है, डी के लिए कितना होता है, एफ के लिए कितना होता है, तभी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पी है, पी की वैल्यू क्या होती है 1। अब ये नहीं करना है कि इसके ऊपर पावर हमारा 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5, बिल्कुल भी नहीं होगा। पी की वैल्यू हमेशा से ही क्या होगी 1 ही होगी, चाहे वो कितना भी पावर उसका दिया हो, कितना भी ज़्यादा, फिर भी उसकी अगर पी आ गया हमारा किसी भी एन नंबर के साथ पी आ गया तो हमारा 1 हो जाएगा। अगर वहीं पे डी रहता तो हमारी एल की वैल्यू 2 हो जाती। ठीक है, अगर वहीं पे एफ रहता तो हमारी एल की वैल्यू क्या आ जाती 3 हो जाती। ओके, यहाँ पे एल की वैल्यू हमारी क्या होगी 1, तो एम क्या हो जाएगा एज वी नो दैट +L2 -1 यानी कि +1 0 एंड -1। अब हमारा एस निकालना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताई थी कि जो पी है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो हमारे 6 होते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं 3 होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 ऑर्बिटल्स बना लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग ये जो दिया है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसी को हम लोग इस पर राइट कर लेते हैं, जैसे +1 0 एंड -1। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, पहले तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हम लोग ऐसे गिनेंगे, ये 5 है ना 5, तो इसको हम लोग को ऐसे काउंट करना है 1। इसको पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग लिखते हैं, उसके अगर ये तीनों भर जाता है उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2, देन हमारा क्या हो गया 3। अब ये भर गया, अब हम लोग क्या करेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिखेंगे, तो 1 2 3, देन हमारा क्या होगा 4 एंड देन हमारा क्या हो गया 5। यानी कि जो हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन है ये जिस भी एलिमेंट का है, तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन्स के हम लोग क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं तो उसमें स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो 0 आ रहा है राइट, ये हमारा 5वां हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोग जब ऐसे काउंट किए 1 2 3 4 5, तो 5वां इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एस के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी -12। अगर वहीं पे अगर 5 यहाँ पे आता यहाँ पे आ जाता है, लेट सपोज यहाँ पे अगर आ जाता और ये क्या है पॉजिटिव यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में, तब यहाँ पे +12 होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज में हमारा 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, इस ऑर्बिटल में आया है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है, इसलिए अब क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू एस की वैल्यू क्या आ जाएगी -12। ये बस हम लोग को सीखना था। ठीक है, अब गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन के लिए भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो तो अभी बहुत इजी होते हैं। जब आप लोग कॉपर जिंक वगैरह का करेंगे और भी जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है थोड़ा थोड़ा टफ होता जाता है। लेकिन अगर आप लोग को याद रहेगा अच्छे से जो ये इसका फॉर्मेट है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देन 3d2। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्यों 4s2 को हम लोगों ने पहले लिखा है और 3d को क्यों बाद में लिखा है। तो गाइज ऐसा हम लोग देखते हैं, ये हमारा s की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और ये 4 + 1 5 हो जाएगा राइट, और ये 3d2। ठीक है, तो 3d2 3 + 2 हमारा कितना हो जाएगा 5, ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं। और इसलिए हमने नहीं राइट किया है क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, 3d जो है वो उससे 3d जो है उससे क्या हो जाता है ज़्यादा होता है, क्योंकि ये 3d कितना होता है 10 होता है राइट 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं ना s2 से, इसलिए हम लोगों ने क्या किया 3d को बाद में लिखा और 4s को क्या लिखा पहले राइट कर दिया। तो ऐसे होता है। उसके बाद हम लोग चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल, हम लोग कार्बन के लिए ले लेते हैं। कार्बन के आप लोग एटॉमिक नंबर कम से कम कुछ नहीं तो 50 तक याद होना चाहिए और एटॉमिक मास 30 तक राइट, तभी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर पाएंगे। तो कार्बन का हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसको कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते कैसे हैं, पहले हम लोग क्या लिखेंगे 1s2। ये जो 2 है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये 6 है हमारा यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1s2 2s2
2 2 4 और क्या लिख लेंगे 2p6 नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आप क्या लिखेंगे 2p2, क्योंकि हम लोग को बस 6 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसलिए 2 2 2 यानी कि 2 2 4 2 6, ये हमारा क्या हो गया 6 हो गया, बस इतना होना चाहिए। अब वहीं पर हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है 8 1s2 2s2 2 2 4 एंड 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी कि 2p6 सॉरी 4, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कैल्शियम, राइट, कैल्शियम का हम लोग ले लेते हैं। तो कैल्शियम में कितने, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारा होता है क्या 20, इसको कैसे राइट करेंगे 1s2 2s, तब तक लिखा जाता है जब तक कि एटॉमिक नंबर जितना है उतना होना चाहिए, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2, देखते कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12, अभी हम लोग को 8 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3s2, देन क्या लिखेंगे 3p6 एंड देन 4s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब काउंट कर लेते हैं 2 + 2 4 6 10 2 12 6 18 एंड 2 20, ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ओके, ये हमारा कैल्शियम का हो गया, ठीक है। एस में हमारे मैक्सिमम कितने होंगे 2, पी में हमारा 6 ही होगा। अब यहाँ पे आप कभी नहीं राइट कर सकते हैं 3p7, कभी भी नहीं हो सकता, ये गलत है, एकदम गलत है। कभी भी आप 6 से ज़्यादा कभी इलेक्ट्रॉन्स लिख ही नहीं सकते हैं पी में, पी ब्लॉक में। अगर वहीं पे डी रहता तो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 10 से कम हो सकता है लेकिन 10 से ज़्यादा उसको आप लोग नहीं राइट कर सकते हैं। और एफ ब्लॉक में आप लोग क्या लिखेंगे 14 13 14, उससे ज़्यादा। Now I am going to tell you about how to calculate or how to find group, period, block of any element. So पहले आप लोगों को ये बताना चाहिए कि पीरियड क्या होता है, राइट। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या दिया गया है, हमारा जो पीरियड है वो क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। तो पीरियड हमारे टोटल कितने होते हैं 7, राइट, हमारे टोटल पीरियड कितने होते हैं 7। और हमारे जो ग्रुप होते हैं टोटल वो कितने होते हैं 18, जो कि वर्टिकली ऐसे बनाया गया रहता है, और ये क्या होता है हॉरिजॉन्टली बनाया गया था। और ब्लॉक कौन कौन से होता है SPDF, ठीक है। अब हमारा पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी राइट किसी भी एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल हमारा ये कौन सा एलिमेंट है 2 2 4 6 10 2 12, राइट। तो ये हमारा मैग्नीशियम है, राइट, ये हमारा मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 12 होता है। इसका दिया गया क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। तो इसमें हम लोग पीरियड कैसे पता चलेगा कि ये जो मैग्नीशियम है वो आखिरकार किस पीरियड में आता है, राइट। ये तो पता होना चाहिए किस पीरियड में आता है, किस ब्लॉक में आता है, किस ग्रुप में आता है, राइट। तो जो हमारा मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 12, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें दिया है कि लास्ट शेल, राइट, लास्ट शेल में जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो हमारा पीरियड होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है लास्ट शेल कौन सा है 3s2, राइट, लास्ट शेल हमारा क्या है 3s2, इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, ये जो 3 आगे नंबर दिया रहता है ना वही हमारा क्या होता है पीरियड, ये हमारा 3 पीरियड है, थर्ड वाला पीरियड है, राइट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड पीरियड मीन्स ये हाइड्रोजन का हमारा फर्स्ट था, नीचे हमारा लिथियम का था ऐसे, और उसके बाद से हमारा सोडियम मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम कैल्शियम, राइट। तो ये हमारा हो गया पीरियड थर्ड, ओके। अब एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल एक और हमारा ले लिया है 26, राइट, 26 हमारा एटॉमिक नंबर ले लिया है आई थिंक आयरन का, ठीक है। तो अब आयरन का हो गया इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो लास्ट हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सा है 3d है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर लास्ट शेल तो हमारा 3d है, लेकिन हम लोगों ने क्यों 3d को नहीं लिया, क्योंकि इसमें दिया लार्जेस्ट वैल्यू, n की लार्जेस्ट वैल्यू को हम लोग को लेनी है। तो 3 से ज़्यादा कौन सा है 4, तो यहाँ पे 4 हमारा क्या है लार्जेस्ट वैल्यू, डेट्स वाई ये जो पीरियड हमारा किस पीरियड में आता है 4th पीरियड में आता है, राइट, ये हमारा 4th पीरियड में आता है, ये हमारा p = 4 हो जाएगा। तो ये हमारा पीरियड निकालने का फॉर्मूला है। देन हमारा ब्लॉक आता है, ब्लॉक वाला क्या होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो हमारा सबसेल होता है SPDF जो भी, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर जो हमारे जो भी दिया हो S दिया हो, अगर लास्ट में हमारा यहीं पे P रहता तो वो हो जाता ब्लॉक P में, अगर वहीं पे हमारा D दिया तो हमारा ब्लॉक D में हो जाता, अगर F रहता तो F ब्लॉक में हो जाता, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 19 है, दैट इज ये किसका है पोटेशियम का है। तो ये पोटेशियम जो है वो किस
सबसेल में आता है 4s1, ये हमारा सबसेल हमारा s है, और ये ब्लॉक भी कौन सा s है, तो ये इसका पीरियड कौन सा होगा, 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया है। ठीक है, अब हमारा देखते हैं अब ग्रुप निकालने का क्या तरीका होता है। ठीक है, तो ग्रुप कैसे निकालते हैं। ग्रुप में भी हमारे क्या है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो एफ ब्लॉक की तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है वो जानने की, लेकिन एस, पी और डी की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में हम लोग को पता है कितने एस ब्लॉक में हमारे कितने ग्रुप होते हैं, 1 और 2 होते हैं। ठीक है, 1 और 2। तो 1 में हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो कन्फिग्रेशन होता है NH1 होता है, और सेकंड में क्या होता है NH2 होता है। ठीक है, तो ये तुम लोग का एस ब्लॉक में तो पता चल जाएगा। यहाँ पे 4s1 दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप 1 में हो जाएगा। अगर वहीं पे 4s2 रहता या फिर 3s2 रहता, एस पे अगर 2 रहता तो हमारा ग्रुप 2 में आ जाता। तो इसका तो एस ब्लॉक का तो एकदम ईजी है। ठीक है, अब हमारा आता है पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग लिखते हैं 12, राइट। 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबसेल, राइट। अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल 35 का हम लोग करते हैं, तो लास्ट सेल ये क्या है 4p5, तो ये हमारा पी सबसेल है और वाइटल है, राइट, पी। ठीक है, तो पी ब्लॉक के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग, ये तो हमारा पीरियड 4 है, ब्लॉक हमारा निकाला है पी। अब हम लोग ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो 12 हम लोग राइट कर लेंगे, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लास्ट सबशेल में, यानी कि पी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे क्या है 5, तो वही हम लोगों ने क्या राइट कर दिया 12 प्लस 5, ये कितना हो गया 17। अब डी ब्लॉक के लिए क्या होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है उस अगर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है और लास्ट में अगर क्या आ गया डी आ गया, राइट, डी आ गया, यानी कि दैट मीन्स डी ब्लॉक के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है, उसका ग्रुप निकालना है, ब्लॉक निकालना है, पीरियड निकालना है, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 प्लस जो लास्ट हमारा डी होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना उसमें से एक माइनस कर देते हैं, n-1, यानी कि 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, और 2 + 4 क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारा ग्रुप निकल गया, यानी कि 6th ग्रुप में हमारा 43 जो एलिमेंट है वो आता है। ठीक है, तो ये सब हमारे थे हाउ टू कैलकुलेट द पीरियड, ब्लॉक एंड एलिमेंट। टिल दैट गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।